Assalamu alaikum dear students of class 3. How are you? I hope you will be good. Welcome to your English class. Open your OPE book page number 24. Here we are with unit 5. Let's check and lesson 1. Exercise number 1 is complete the dialogue using the right verb forms. Dear students, as you know that there are 3 forms of the verb: base, past, past participle, but in this lesson we are going to study and practice the present participle form, means ing form of the verb. At the end of the verb we put ing that we use with present continuous tense. In this lesson we are going to practice present continuous tense. Dear students, let's read the conversation between Grandpa and Nadia, and we have to put the correct form of the verb in the empty lines. Number 1 is: Grandpa, you are very quiet. Nadia, what are you doing? Dear students, look at that. In bracket there is the word do, and now it's in doing. डियर स्टूडेंट, ब्रैकेट में वर्ड डू लिखा हुआ है. जब हमने सेंटेंस लिखा है तो हमने इसको करेक्ट करके इंग फॉर्म लगा के डूइंग कर दिया गया. ये आपके लिए एग्जांपल दिया गया है. अब इसी तरह से हम ये सेंटेंसेस पूरे करेंगे. हम यहाँ पे जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो हम वहाँ पे ing का वर्ब के साथ ing लगा देंगे. अब नंबर 2 इज़ नादिया सेइंग I'm a story about space. Now what is in the bracket? Read. We will say that I am reading a story about space. Right here, reading. Number 3, Grandpa, space adventure. There is a question mark. That means it's a question. Often read. Now it is the question. And we make questions in present tense by using does and do in starting or beginning of the sentence. Now we will make sentence like that. Do you often read space adventures? डियर स्टूडेंट्स, जो मैं सेंटेंसेस पढ़ती जा रही हूँ, आप वो इस तरह से नंबर्स लगा के अपनी कॉपी में नोट करते जाइए. जैसे कि नंबर 1 सेंटेंस है, नंबर 1 से स्टार्ट करिए. यू आर वेरी क्वाइट नादिया, व्हाट आर यू डूइंग. ओके. अब नंबर 2 में आप लिखेंगे आई एम रीडिंग स्टोरी अबाउट स्पेस. नंबर 3 में आप लिखेंगे Do you often read space adventure? Okay, आप इस तरह से sentences करेक्ट करते जाइए. Now number 4 is Nadia. No, I usually stories about animals. Now, what is in this sentence? I usually. Dear student, this is sentence is present simple tense. And we will use the base form of the verb. Okay, that means we don't change the verb, so we will write as it is. I usually read stories about animals. Okay. Number 5 is that Grandpa, is that Saira in the kitchen? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब ग्रैंडपा पूछ रहे हैं कि क्या सायरा किचन में है. और यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन मार्क है. That means it's another question. And what she doing? What? Now we will write like that. What is she doing? That means Grandpa is talking in present continuous tense. That what is she doing? Wherever we see is mr is a, that means it's present continuous tense and verb will be in ing form. Okay dear students, जहाँ पे verb होगा ing फॉर्म में और वहाँ is और am are यूज़ किया गया हो, आप ये जान लें कि present continuous की बात हो रही है. Now number 6, Nadia, she a cake. Here is written make. Now we will write sentence like that. She is making a cake. She is making a cake. मेक को हमने मेकिंग कर दिया. ठीक है. अब मेक को हमने मेकिंग कर दिया, डू को डूइंग कर दिया है, रीड को रीडिंग कर दिया है. ठीक है. अब आगे नंबर 7 है. ग्रैंडपा कह रहे हैं
कुकिंग, अब यहाँ पे कुकिंग है और क्वेश्चन मार्क है और वर्ब दिया गया है एंजॉय। एंजॉय एक वर्ब है। अब इस वर्ब को हम इन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डज शी एंजॉय कुकिंग? अब ये क्वेश्चन है, ये मतलब एक आम क्वेश्चन है, क्या उसे कुकिंग अच्छी लगती है? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आएगा। अब यहाँ पे कुकिंग इंग फॉर्म में है, लेकिन इसके आगे वर्ब है और वर्ब के आगे हम ये क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे कि डज लगाएंगे। डज शी एंजॉय कुकिंग? अब ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आ गया। अब यहाँ पे कुकिंग में ING क्यों है? ये ऐसा होता है, कुकिंग यहाँ पे अब वर्ब नहीं रहा क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है तो ये नाउन हो गया है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है वर्ब पे कि हम ये सेंटेंस किस टेंस का है और यहाँ पे हमें वर्ब कैसा यूज़ करना है। अब डज भी आ गया यहाँ पे, तो हमने इस वर्ब का बेस फॉर्म यहाँ पे लगाया, उसके बाद कुकिंग किया। कुकिंग मतलब खाना पकाना। ये जो कुक है, कुक का मतलब खाना पकाना होता है और इसका जो ये कुक हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ भी कर सकते हैं कि दैट शी इज़ अ कुक, मतलब ये अच्छा खाना पकाती है। वर्ब और एडजेक्टिव सेम हो गया। अब ये ING लगा तो जब ये सेंटेंस की एंड में आ गया तो हम इसको नाउन का रूप आ गया, इसका रूप चेंज हो गया है। ये जस्ट लाइक अ मैजिक, ये सेंटेंस भी मैजिक की तरह होते हैं, जब उनकी जगह चेंज हो जाती है तो उनका मतलब भी चेंज हो जाता है। नाउ कम टू द सेंटेंस नंबर 8। नादिया, यस शी यूजुअली fruit cake. Now here is the verb in bracket is make. There is a comma, that means we have to write this verb in this sentence. यहाँ पे कामा दी गई है, that means ये सेंटेंस पूरा है। अब ये वर्ब हमें यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे she है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई यूजुअली आया है, मतलब ये काम हमेशा होता रहता है, ये काम वो करती है। she usually makes fruit cakes. ओके, मेक्स हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे शी है। यूजुअली जहाँ आता है वो प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही होती है कि ये काम जो हम डेली रूटीन में करते हैं, जब हम डेली रूटीन की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल लिखते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्स ES लगा देंगे, MAKES। ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। बट दिस टाइम, अब यहाँ पे बात किस टाइम की बात हो रही है? दिस टाइम मतलब अभी, पर अभी, तो अभी हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? अभी की बात हो रही है तो वी विल यूज़ हेयर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बट दिस टाइम, अगेन here the verb make. Now we will change the verb in making. But this time she is making a chocolate cake. Okay, Nadia is saying that she usually makes fruit cakes, but this time she is making a chocolate cake. And Grandpa says, I hope she will keep some for me. So dear students, in that passage you can see some present simple tense, present continuous tense, but we have to focus on present continuous tense. Now it is your homework to write down the sentences of present continuous tense on your copies. You have to note sentences from this passage, present continuous tense sentences. Okay, डियर स्टूडेंट्स, इस पैसेज में यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कौन से सेंटेंसेस हैं आपको वो अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और फिर आपको 5 और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाने हैं। पहले तो आप इनमें से लिखेंगे, अब 5 दूसरे सेंटेंस भी लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, जिसमें आप वर्ब यूज़ करेंगे विथ इंग फॉर्म। ओके, ये वो वर्ब्स यहाँ नहीं होंगे, आप अपने तरफ से वर्ब्स यूज़ करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाएं। पहले यहाँ से लिखें, फिर अपने तरीके से 5 सेंटेंसेस बनाएं। I hope you understood the lesson. I'll be back with another interesting lesson. Till then, Allah Hafiz, take care, do your homework very carefully.